Vaishnav and Samrat for Paula Icons. Gratik, Gratik will bowl the first over for Dado Warriors. Okay. First dot ball by Gratik. Vaishnav. Smashed. Over long of for 6. So Vaishnav opened the account of Paula Icons with that big 6. Now Gratik is coming round wicket for Vaishnav. Shorter one. He hammered it. Will get, yeah, 4 for that. 10 for Paula. 10 for Vaishnav. Back to back boundaries for Vaishnav. Miscued. Has gone. They lost Vaishnav on the score of 10. A prize is clap for Dado Warriors. With help of 1 6 and 1 4, Vaishnav scored 10 runs for his team. New man working for Paula Icon is Rajat. Well, stop a certain 4. 10 for 1 for Paula Icons. Well run. So after 1 over the scorecard is 11 for 1 for Paula Icons. Paula Icons have to keep in mind a target of 60 was easily chased in the previous match. So in the coming 4 overs, they will have to go all guns after the Warriors. A 70 plus can be defendable or can be chaseable. Mangesh will bowl the second over for the Warriors.
11 for 1. We are in the second over for Poly Icons. Well struck. Just waited for the ball on mid wicket and a sluggish shot. Third match of this PPL is going between Poly Icons and Daddu Warriors, Talpana. Oh, back to back six. This was a lollipop just gifted to Behama, and Samrat hit that the treatment it deserved for that ball. So 23 for 1. Mangesh now round of wicket for Samrat. Will have to set with a single. Twenty-four for 1. We are in the second over. Just a single. A very disciplined bowling from Mangesh after hammered twice in this over. Just three singles in the last three balls from Mangesh. 26 for 1. We are in the second over. We will have just a single for that shot. So after two overs, the scorecard is 27 for 1. Good comeback by Mangesh. Just considered 4 runs upper after hammer twice for sixes by Samrat. 27 for 1 after 2. Poly Icons 27 for 1 in 2 overs. Another 3 overs to go. Bowler's name, please.
4 runs. Beautiful shot over the cover region. One for one. The third match of this PPL is going between Dadu Warriors and Pauli Icons. Square cut going to the fence. Yeah, it will. 35 for one. Try to play it reverse. Straight will single. There was slightest chance of catch there, but the shot was played. Thirty-six for one. Good ball. Definitely a good comeback. We are in the third over, and at this juncture, I will say a balanced match between Pole and Dadu Warriors Talpan. Yeah, a back-to-back dot ball for Santosh. So after 3 overs, the scorecard is 36 for 1, an average of 12 runs per over. I think the captain of Dadu Warriors will not mind because a score of 60 is already chased on on this ground so far in the second match. And highest score so far is 81, 80 for AS Mangana. 36, 36 for 1. Another 2 overs to go. Ganraj will bowl the fourth over. This could be the crucial over for Dadu Warriors. Oh, smack it for 6. It was a straight line. 42 for 1. Now Pole Icons have to go after the bowlers. Over to Sandeep.
गेंद तो बेहतरीन थी ये, और इसी के साथ लपक लिया कैच और चलता किया। आखिरकार रजत डगआउट में जाने की कोशिश करते हुए, अच्छी बल्लेबाजी की कोशिश जरूर हो गई थी। एक छक्का जड़ा था रजत ने, लेकिन ज्यादा रन नहीं जोड़ पाए अपने टीम के लिए। वैष्णव भी एक छक्का जड़कर सस्ते में पेविलियन में जा चुके थे। उसके बाद रजत के ऊपर पूरा भार था, लेकिन रजत एक छक्का लगाकर बड़े स्ट्रोक लगाने की कोशिश में आउट होकर डगआउट में चले गए हैं। नए बल्लेबाज प्रशांत, लोकल ग्राउंड है ये ग्राउंड तो लोकल है प्रशांत का। फिलहाल स्कोर रुका हुआ 44 रनों पे। हमने वहां बैठ के, उस पैंडल में बैठ के एक अनुमान लगाया था कि 65-70 रन हो जाएंगे, अभी भी जा सकते हैं 70 रनों पे, लेकिन 44 रनों पे स्कोर रुका हुआ। सफलता मिली है गणराज को। और इस बार सम्राट खेल चुके हैं बड़े स्ट्रोक के लिए और 6 रन हासिल किए अपने टीम के लिए। जरूर कहना चाहूंगा मैं इस सम्राट के बारे में। अगोंदा ग्राउंड पर मैंने इसकी एक इनिंग देखी थी, 12 गेंदों में 51 रन, आतिशी पारी खेली गई थी, वो भी लेदर बॉल से, सीजन बॉल से। वो 12 गेंदों में 51 रन बनाए थे, आतिशी पारी खेली गई थी सम्राट मोखड़कर की ओर से। फिर एक बार पुल कर दिया है गेंद को, हवा से गेंद जा रही है गगनचुंबी के स्ट्रोक के रूप में 6 रनों के लिए। लगातार 2 छक्के आ गए हैं सम्राट की ओर से। मैंने अनुमान लगाया है कि 70 पार जरूर करने की क्षमता इन बल्लेबाजों में है। अब तो स्कोर बन गया है 56 रन बन गए हैं, 14 रनों से दूर है 70 पार करने के लिए। फिलहाल जिस प्रकार की बल्लेबाजी हम देख रहे हैं उसको मद्देनजर रखते हुए आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, फाइन गेंद चली गई है, दुगनी जोड़ने की कोशिश जरूर हो जाएगी, लेकिन 1 रन पे संतुष्ट हो गए सम्राट। 1 रन के जरिए टोटल गई है 57 रनों पे। सामने अब आए हैं, पहली मर्तबा फेस करने की कोशिश करेंगे प्रशांत। फिर एक बार फाइंड खेला गया है, कोई मौका नहीं फील्डर के लिए, फील्डर दर्शक बन गए और गेंद तकरीबन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। 4 के सहारे टोटल हो गई है 61। ओवर की समाप्ति, जो अनुमान मैंने वहां जिक्र किया था पैंडल में, वहां से बोल के मैं आया हूं कि 70 के पार ये स्कोर इस मैच में देखने को मिलेगा, उसी प्रकार से जा रही है। बेहतरीन बल्लेबाजी हो गई है, 24 गेंदों में 61 रन अब तक बना पाई है। 6 गेंदें अभी भी बरकरार, 6 गेंदों में 36 रन भी आ सकते हैं, शायद 6 गेंदों में 6 विकेटें भी जा सकती है। यह तो क्रिकेट की कहावत है, क्रिकेट में कब क्या होगा ये कोई भी कुछ भी नहीं कह सकते, यह अचंभिताओं का खेल है। फिलहाल 6 गेंदें शेष, आखिरी ओवर शुरू होने की संभावना। सामने है सम्राट, अब तक काफी डटे हुए, काफी शानदार अपने टीम के लिए खेले हैं सम्राट। नए गेंदबाज प्रतीक, काफी आक्रामक रवैये की गेंदबाजी करने की सोच में है गेंदबाज। पहली गेंद डॉट के तौर पर गेंद चली गई है। मैं काफी बार कह चुका हूं, कहता आया हूं, डॉट गेंद शॉर्ट ओवर के क्रिकेट में सोने के भाव में तोली जाती है, गोल्डन गेंद कहा जाता है इस गेंद को। इस बार कवर ट्राई सम्राट के बल्ले से, गेंद तकरीबन बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। छक्के के सहारे टोटल 70 के पार होने की संभावना जरूर जताई जा रही है। यहां से स्कोर बन गया है 67। मैं बेहद खुश हूं, क्योंकि मैं वहां से जिक्र करके आया था कि 70 रन पार हो जाएंगे, 70 की संभावना यहां जरूर जताई जा रही है। बॉल
आखिरी ओवर चलती हुई, चंद गेंदें फेंकी गई है पहले ये आखिरी ओवर की। फिर एक बार कवर ड्राइव, क्या शानदार स्ट्रोक, मनमोहक के तरह शानदार स्ट्रोक खेला गया सम्राट द्वारा। फिर एक बार कवर ड्राइव और छक्के के रूप में गेंद तब्दील हो गई है कवर क्षेत्र से। क्या लाजवाब, 70 पार हो गए हैं। शुभकामनाएं, जो मैं वहां से बोल के आया था वो 70 रन पार हो गए हैं, 73 रन बन गए हैं। हमें ज्ञात है, 27 साल में कमेंट्री करते आया हूं, कौन बल्लेबाज कब टूट पड़ेगा गेंदबाजी पे वो मैं जानता हूं। क्या शानदार सम्राट खेले हैं। कवर ड्राइव, ये जानते हुए, ये देखते हुए कि हवा पलटवार कर रही है, उल्टी दिशा से बह रही है, और इस बार नेहले पे देहला सम्राट की ओर से मिड विकेट क्षेत्र पार कर गई है। हवाई मेल छोड़ दी गई है छक्के के रूप में सम्राट ने। छक्के सारे टोटल हो गई है 79, 79 स्कोर बन गया है और हाई स्कोर है आज के दिन का। गेंद गेंद की मांग कर रहे अंपायर। अभी भी चंद गेंदें शेष है आखिरी ओवर की। क्या सम्राट खेले हैं। हाई स्कोर आज के दिन का, पहली मैच में 80 रन बने थे, उसके बाद 79 रन अब तक पार हो गए। दो गेंदें अभी भी शेष है आखिरी ओवर की। 45 रन बनाकर खेल रहे हैं सम्राट। ये लेग स्टंप के बाहर गेंद थी, वाइड का इशारा, वाइड के सहारे बराबरी पर आज के दिन का हाई स्कोर बराबरी पर पहुंच गया है। 80 रन बन गए हैं। क्या शानदार सम्राट खेले हैं, 45 रन बनाकर खेल रहे हैं और इस बार 85 पार कर दी। पहली 85 इस प्रतियोगिता में, श्रृंखला में, इस टूर्नामेंट में सम्राट पहले नंबर पे है। 51 रन इस छक्के के जरिए पहली 85 पार की गई है सम्राट मुखड़कर की ओर से। 16 गेंदें फेस की गई है और 51 रन संभल कर खेलने की कोशिश। यही तो मैं वैष्णव को बोल के आया था, थोड़ा सा संभल के खेलना जरूरी था आपने, लेकिन सम्राट संभल के खेलकर इतना बड़ा स्कोर बनाया है अपने टीम का। 85 रन हाई स्कोर आज के दिन का, पीपीएल टूर्नामेंट में हाई स्कोर बन गया है। हवा में तैरती हुई गेंद, नो मैंस लैंड गिरती हुई, दुगनी जोड़ी गई है और इस दुगनी के सारे टोटल और इस बार और एक रन मिलने की संभावना। 3 रन जोड़े गए हैं और 3 रनों के सहारे 88 रनों पे पहुंच गया है। 80 2 ही रन और 88 रन बनाए हैं और 89 रनों का लक्ष्य जीत के लिए, काफी महंगा लक्ष्य दिया गया है जीत के लिए। दादू 11 को जीत के लिए इस्पाटल्यांची मॅच जातली बेतूल योद्धास वर्सेस भूमिपुरुष बॉयज पालोलेम। दोन्ही कॅप्टनाला लागे मागण्यासाठी बेगीन टॉस सोडपाक पॅव्हिलियना कडेन येवचे। बेतूल योद्धास वर्सेस भूमिपुरुष बॉयज पालोलेम। After this match will be played between Betul Yoddas versus Bhumi Purush Palolem. Both the captain please come for the toss. हांव दोनूय कॅप्टनाला की मागता पेंडला मुखार टॉसा खातीर येवपाक, कारण टाइम वचपाक जायना। एक इनिंग काबार जाल्ले आसा, इनिंग काबार जातनाच दोनूय अंपायरांनी फुडली मॅचीच्या टॉसा खातीर पावप हें गरजेचें जावन आसा।
भूमिपुरुष कॅप्टन प्लीज कम फॉर द टॉस. मागता तुमचे लागे एक विनंती असा की बेगीन करून हांगा टॉसा खातीर येवपाक भूमिपुरुष कॅप्टन पालोलेम आणि येतना बरोबर प्लेइंग 11 लिस्ट घेवन यो. फिल्डिंग टीमीच्या कॅप्टनाला एक मागणी असा की बेगीन करून आपल्या फिल्डिंगेची सजावट करपाक ग्राउंडाचेर. दो अंपायर शानदार अंपायर जिसे कि मान्यता प्राप्त अंपायर आनंद कदम मेरे अच्छे मित्र है और कोरगांवकर अंडर 14 अंडर 16 अंडर 19 अंडर 22 के कप्तान थे ये गोवा के लिए. थोड़ी सी चोटिले होने के कारण आगे नहीं जा पाए. आज अंपायरिंग का जुम्मा संभाल रहे हैं. बहुत बहुत दोनों का स्वागत. आरंभिक बल्लेबाज के रूप में आए हैं तुकेश और उसका साथ देने के लिए आ गए हैं ग्रतिक. दोनों ही आक्रामक रहे के बल्लेबाज. एक तलपन से बिलोंग करते हैं, एक पालोलम से बिलोंग करते हैं. ग्रतिक तो तलपन का तलपन एरिया का है और वो जानते हैं इस पिच को. तुकेश की काफी सालों से क्रिकेट मैं देखते आया हूं. लाजवाब बल्लेबाज है ये, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज. बेहतरीन बल्लेबाजी की गई है इन सालों में. बल्लेबाजी का आरंभ करने के लिए तुकेश लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज. फायदा मिल सकता है. अच्छी बल्लेबाज डट कर खेले तो ये जीत 89 की जो है वो दूर नहीं हो सकती. दादू 11 के लिए बेहतरीन लाजवाब स्क्वायर कट के रूप में खेला है पॉइंट के क्षेत्र से. आउटफील्ड ठीक न होने के कारण बाउंड्री पार नहीं कर सके. 2 रन पहली गेंद पे जोड़ने में कामयाब हो गए तुकेश. जितने भी टीम्स पार्टिसिपेट इस पागी समाज टूर्नामेंट में यहां आ गए उनका तहे दिल से हम हार्दिक स्वागत करते हैं. सभी खिलाड़ियों का हार्दिक स्वागत करते हैं. बढ़िया स्ट्रोक तुकेश की ओर से आउट हो गए. शानदार कैच लपक लिया मिड विकेट के क्षेत्र में. रजत बागी क्या बल्लेबाजी देखी थी फसकाड़ी ग्राउंड पर रजत की ओर से. लाजवाब बल्लेबाजी की थी. मैं उस टूर्नामेंट में कमेंट्री नहीं कर रहा था लेकिन देखने के लिए गया था. लेकिन लाजवाब बल्लेबाजी निभाई थी रजत ने. अभय ने 385 पार करने के बावजूद भी उस प्रतियोगिता से हैंड फाइटर टीम बाहर हो गई थी. और रजत भी काफी शानदार खेले थे. गेंदबाजी भी काफी बेहतरीन निभाई थी धर्मवीर टूर्नामेंट में. सफलता पहली ओवर में दूसरी गेंद पर मिलती हुई गेंदबाज को. तुकेश आउट होकर डगआउट में चले गए हैं. तुकेश का स्थान ग्रहण करने के लिए आ गए हैं नए बल्लेबाज मंजेश. एक ख्यातनाम नाम है क्रिकेट के लिए. काफी कुछ दिया है मंजेश ने. काफी सालों से क्रिकेट खेलते आए मंजेश पागे. लाजवाब क्रिकेट खेली है. बेहतरीन बल्लेबाजों में जाने जाते हैं मंजेश पागे. ये भी शानदार खेले थे. रिवर्स स्वीप 4 रन जरूर मिलेंगे. गोली की तरह गेंद चली गई. गली
बाउंड्री के क्षेत्र से 4 रनों के लिए मंजिश के बल्ले से पहली गेंद फेस कर रहे थे और 4 रन हासिल किए मंजिश ने। 4 के सहारे टोटल हो गई है 6 रन, जबकि जीत का लक्ष्य है 89 रनों का। बेहतरीन रिवर्स स्वीप मंजिश की ओर से 6 रनों के लिए। मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूं, आक्रामक रवैये के बल्लेबाज, आतिशी पारी खेलने के लिए माहिर ये खिलाड़ी है और 2 बड़े स्ट्रोक खेल चुके हैं, चौका छक्का जड़ चुके हैं और छक्के के जरिए टोटल हो गई है 12 रन। मंजिश से बल्लेबाज को गेंदबाजी करना आसान नहीं है, संभल कर गेंदबाजी करना जरूरी है। मंजिश काफी आक्रामक रवैये के आतिशी पारी खेलने वाले बल्लेबाज है। काफी सालों से इस बच्चे को मैं देखते आया हूं। ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंद, वाइड का इशारा अंपायर द्वारा। यही बोझा होता है, गेंदबाज पे यही बोझा होता है। 2 स्ट्रोक बड़े लग गए तो गेंदबाज थोड़ी से निराश हो जाते हैं, उसके बाद गेंदबाजी में फिसलते हैं। लाजवाब कैच, आज के दिन की बेहतरीन सुंदरता से पकड़ी गई ये कैच है। एक हाथ से लपक लिया कैच और बड़े बल्लेबाज को चलता किया डगआउट में। डीजे क्या लाजवाब कैच वैष्णव द्वारा, वैष्णव पेडनेकर है ये। अंडर 16 से अंडर 19 से अंडर 22 भी खेले हैं ये गोवा के लिए। बेहतरीन क्रिकेटर है। बल्लेबाजी में कुछ तो ज्यादा रन नहीं जोड़ पाए, 6 रन हासिल किए जरूर थे वैष्णव ने, लेकिन आउट होकर डगआउट में गए थे। लेकिन क्या सफलता दिलाई अपने गेंदबाज को वैष्णव ने, एक हाथ से कैच पकड़ते हुए। नए बल्लेबाज टाटू नाम से ज्यादा जाने जाते हैं, संतोष नाम है इनका, संतोष बाड़लीकर। हल्का सा पुश किया ऑन साइड की दिशा में, मिड विकेट के शॉर्ट मिड विकेट पे फील्ड होती हुई गेंद ओवर थ्रो जरूर हो गया था, लेकिन कोई और रन की गुंजाइश नहीं। सिंगल पे संतुष्ट, सिंगल भी नहीं निकाला गया है, माफ कीजिएगा। स्कोर पहले ओवर की समाप्ति पर 13 रन। अच्छी पाबंदी लगाई गई है। पहले बल्लेबाज के रूप में आउट होकर तुकेश गए थे, उसके बाद क्या शानदार कैच लपक लिया था वैष्णव पेडनेकर ने विकेटों के पीछे और चलता किया था मंजिश पागी को डगआउट में। काफी शानदार हम गोवा में विवरण दे चुके हैं। हमारे 5 सेना नायक कमेंट्री में नदीम अहमद बेहतर कमेंटेटर है, वास्को से बिलोंग करते हैं। बंटी उदेलकर, हरीश काकोडकर सावर्डे से, तुषार नायक नॉर्थ गोवा से, संदीप पागी मैं हूं और हमारे नमशिकर पंकज नमशिकर गोवा के लिए हम क्रिकेट में काफी कुछ दे चुके हैं, कमेंट्री दे चुके हैं। अभी नए उभरते तारे हमारे वैभव नमशिकर हमारे साथ जुड़ते हुए अभी मैच खेल रहे हैं। वैभव को काफी अनुभव आया है कमेंट्री का, लोग पढ़ाई कर रहे हैं। वैभव नमशिकर युवा कमेंटेटर सामने आया है, बेहतर कमेंट्री देने की कोशिश वैभव नमशिकर करते हुए। ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंद, गति के लिए गेंद डाली गई थी, वाइड का इशारा अंपायर द्वारा, कोरगांवकर द्वारा। वाइड के सहारे टोटल में 1 रन की वृद्धि, 1 रन का मुनाफा आता हुआ टोटल बन गई है 14 रन, जबकि जीत की मंजिल काफी दूर है।
89 रन जरूरी है जीत के लिए, 75 रन जरूरी है जीत के लिए। वैभव पागी स्टैटिस्टिक का काम बढ़िया कर रहे हैं। यहां से फिर एक बार अतिरिक्त रन वाइड के जरिए 74 और रन जरूरी जीत के लिए। काफी शानदार खिलाड़ी गेंदबाजी के लिए आ गए हैं। गेंदबाजी का भार संभालने के लिए रजत पागी। बेहतर स्ट्रोक, लाजवाब स्ट्रोक ऋतिक के बल्ले से। गेंद तकरीबन बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। छक्के के सारे टोटल हो गई है 21। जीत के मंजिल को थोड़ा सा हल करने की कोशिश ऋतिक द्वारा होती हुई 21 पर पहुंचाया अपने टीम का स्कोर, जबकि दूसरी ओर प्रगति पर चल रही है रजत पागी की ओर से। अगली गेंद फेंकने की कोशिश करते हुए रजत, फिर एक बार तकरीबन गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर लॉग ऑफ क्षेत्र से 6 रनों के लिए। 27 रनों पे पहुंचाया है अपने टीम का स्कोर। जीत के मंजिल पर जाने की कोशिश काफी बढ़िया रही है ऋतिक की। 2 बड़े स्ट्रोक, लाजवाब स्ट्रोक खेले गए हैं ऋतिक द्वारा। लंबा स्कोर टारगेट करना है तो ऐसे ही स्ट्रोक जरूरी होते हैं। फिर एक बार मौका नहीं फील्डर के लिए, लॉगन क्षेत्र पार कर गई है। लगातार 3 छक्के, छक्कों की हैट्रिक ऋतिक द्वारा। छक्के के सारे टोटल हो गई है 33 और जीत का जो लक्ष्य है वो 89 रनों का है। 89 रनों का लक्ष्य, उसको पार करने की क्षमता ऋतिक जब तक क्रीज पर डटे रहेंगे दूर नहीं है जीत। अच्छी गेंदबाज में वापसी करते हुए रजत पागी। काफी देर के बाद डॉट देखने को मिला रजत पागी की ओर से। 33 रनों पे स्कोर रुका हुआ। अभी भी जीत की मंजिल काफी दूर तो जरूर है। 56 और रन जरूरी है जीत के लिए। दूसरी ओर प्रगति पर चल रही है। ऑफ स्टंप के काफी बाहर, ये तीसरा वाइड इस ओवर का। 21 रन अब तक आ गए हैं इस ओवर से। काफी महंगी ओवर साबित हो रही है। पहले ओवर में 13 रन और उसके बाद 21 रन इस ओवर से अब तक आ गए हैं। फिर एक बार शाहरुख खान जैसे हाथ फैलाए कोरगांवकर अंपायर ने वाइड का इशारा देने के लिए। अतिरिक्त रन की सहारी टोटल बन गई है। 35 रनों पे पहुंचाया है इस वाइड ने। फिर एक बार अतिरिक्त रन यहां से। वाइडों पे वाइड जा रही है। काफी महंगी ओवर साबित हो गई है और टोटल हो गई है 36 रन। लगातार 3 वाइड दे चुके हैं इस ओवर में। पहले 2 वाइड डाले थे, उसके बाद 3 छक्के आए थे, उसके बाद 3 लगातार वाइड। टोटल 5 वाइड इस ओवर से दे चुके हैं रजत पागी। (36 रन। और इस बार करवट लेती हुई गेंद जरूर तो गई थी। ऑफ स्टंप से करवट लेती हुई स्टंप की थोड़ी सी बाहर तो जरूर गई थी, लेकिन बेहतर गेंद थी ये। लीगल गेंद। काफी देर के बाद डॉट निकालने में कामयाब हो गए रजत पागी, लेकिन स्कोर काफी हो चुका है। 36 रन बन गए हैं। फिर एक बार वाइड गेंद, 6वां वाइड इस ओवर से। 37 विद द सिंगल टोटल बन गई है
37 रन जीत का लक्ष्य 89 रनों का उसको पार करने की क्षमता रखते हुए ग्रथिक काफी लाजवाब 3 छक्के जड़ चुके हैं। फिर एक बार वाइड गेंद, वाइड गेंद, 7वां वाइड है ये इस ओवर का। थोड़े से बहक गए हैं, संतुलन खो बैठे हैं गए गेंदबाज। 7 गेंदें वाइड और 3 छक्के इस ओवर से आने के कारण दबाव आ गया है गेंदबाज पे। काफी रन आ गए इस ओवर से। इस सिंगल के जरिए टोटल हो गई है 38 रन। 13 रन पहले ओवर से ओवर की समाप्ति पर आए थे, अब तक 25 रन इस ओवर से आ गए हैं। फिर एक बार अतिरिक्त रन वाइड के जरिए वाइडों की खोज यहां हो रही है। वाइड वाइड पे वाइड देते जा रहे हैं वो रजत पागी। 8वां वाइड, 26 रन अब तक आ गए हैं इस ओवर से। हवा में तो तैरती हुई गेंद लपक नहीं सके, छोड़ दी गई है कैच लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। एक पे संतुष्ट हो गए। दूसरी ओवर की समाप्ति, काफी महंगे ओवर की समाप्ति हो गई है। 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बन गया है 40 रन। 27 रन इस ओवर से काफी बढ़िया जानकारी हमें दे रहे हैं। जो स्कोरिंग का काम कर रहे हैं, लाजवाब काम निभा रहे हैं। राहुल का साथ दे रहे हैं वैभव पागी, स्टैटिस्टिक का काम कर रहे हैं। और मेरा साथ यहां देते देते यहां से शायद भोजन के लिए गए होंगे शेखर पागी। काफी साल हमने गुजारे हैं कमेंट्री में साथ निभाते हुए। बहुत बहुत स्वागत है शेखर पागी आपका। तो ओवर की समाप्ति पर 20 की औसत के जरिए, इसी औसत के जरिए चली गई तो 4 या 4.25 ओवर में मैच की समाप्ति हो सकती है। फिलहाल बल्लेबाजी उसी प्रकार की होनी जरूरी है। कृतिक क्या शानदार खेले, सम्राट जिस प्रकार से खेले थे उसी का नमूना यहां पेश करते हुए 3 छक्के हासिल कर चुके हैं स्वयं के लिए, टीम के लिए। 18 गेंदें, 18 गेंदें शेष है और 49 रन जरूरी है जीत के लिए। कठिन काम जरूर है। फॉलो थ्रो में बढ़िया फील्डिंग, वैष्णव पेडनेकर एक काफी शानदार क्रिकेटर है, गोवा के लिए भी योगदान दे चुके हैं। और फॉलो थ्रो में बढ़िया फील्डिंग करते हुए कोई रन की गुंजाइश नहीं बनी। पहली गेंद डॉट के तौर पर डाली गई है वैष्णव पेडनेकर द्वारा। इस बार करवट लेती हुई काफी ऑफ स्टंप के बाहर जाने के कारण वाइड आ चुकी है। वाइडों की बौछार। कुनेश आपका बहुत बहुत स्वागत है। वाइड के सहारे टोटल बन गई 41 रन। 48 और रन जरूरी जीत के लिए। बढ़िया स्ट्रोक स्क्वायर कट के रूप में तकरीबन गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। ग्रथिक का चौथा छक्का और इस बेहतरीन छक्के के जरिए टोटल हो गई है 47 रन, 47। अब बची हुई है 16 गेंदें और 42 रन जरूरी है जीत के लिए। 42 मोर रन टू विन इन 16 बॉल्स। क्या जा रही है जीत की ओर। ग्रथिक क्या खेल रहे हैं, उम्दा खेल रहे हैं। आक्रामक रवैये की बल्लेबाजी दिखा रहे हैं ग्रथिक। काफी शानदार ये प्रतियोगिता, ये श्रृंखला चलती हुई पागी समाज संगठन की ओर से। इस बार विकेटों को छोड़ के खेलने का मौका जो मिला था ग्रथिक को, लेकिन बल्ला और गेंद के बीच संपर्क नहीं हो पाया।
ग्रतिक खेल नहीं पाए, डॉट के तौर पर गेंद चली गई है वैष्णव की। 2 गेंदें अब तक डॉट डाल चुके हैं। बेहतरीन गेंद ब्लॉक होल में करने का प्रयास और सफल हो गए। सिंगल पे संतुष्ट, सिंगल तो चुराया गया है, सिंगल के जरिए टोटल हो गई 48 रन और जीत की मंजिल पार करने के लिए और 41 रन जरूरी है, जबकि तीसरी ओवर प्रगति पर चल रही है। इस ओवर के बाद 2 ओवर शेष। फिर एक बार वाइड गेंद, अंपायर कदम द्वारा वाइड का इशारा आता हुआ। अतिरिक्त रन के सहारे टोटल गई है 49 रनों पे। अब पूरे 40 रन जीत के लिए जरूरी है। फुल टच पे ट्राई किया, बढ़िया स्ट्रोक खेला तो जरूर गया था, सीधे फील्डर के पास गेंद चली गई। बड़ी रफ्तार से स्ट्रोक को खेला गया था बल्लेबाज द्वारा, डॉट की तौर पर गेंद चली गई। ये तीसरी डॉट है इस ओवर की। अच्छी गेंद, अच्छी निभाई है गेंदबाजी वैष्णव ने। जमीन के सहारे खेला गया था सिंगल के लिए और इस सिंगल के जरिए टोटल पूरे 85 पार होती हुई, 85 पार करने पर बधाई है। अब 39 रन जीत के लिए जरूरी है बचे हुए 12 गेंदों में। अच्छी गेंदबाजी निभाई है वैष्णव पेडनेकर ने। सिर्फ 10 रन आए इस ओवर से। पहले ओवर में 13 रन, उसके बाद 27 रन आए थे रजत के ओवर में और इस ओवर में 10 रन। यह है लेखा जोखा 3 ओवर के बाद 50 पूरे 50 रन बन गए हैं। 12 गेंदें 39 रन जरूरी जीत के लिए। और शेखर से मैं अनुरोध करना चाहूंगा, मुझे थोड़ा सा रेस्ट जरूरी है क्योंकि मैं चोटिला हूं एक्सीडेंट होने के कारण, इसलिए आगे का हाल सुनाने के लिए शेखर पागी। $50 for 2. They require another. They require another 39 runs in 2 overs to win this match. $39 in 12. That's the target for the other Warriors. The way things going, it could be anybody's match now. Good line. This will be crucial over for a smashed. It doesn't look like a crucial over. In full glow, Gratik. Oh, 6. Taken.
56 for 3. बदल बोला ना नौ बोला नौ बोल रहे नौ 33 in 9. That's the target for Duduva. Just a single. I think the bowler will not mind that single. Duduva does not require those big blows. Dadu. Dadu Warriors. That's wide. 58 for 3. $58 for 3. Oh, well picked up. It definitely picked the ball. 64. Ball. This could be somebody's match. The match is drifting both way. Another 25. A lifer and they will got 2 for that. So 66 for 3 in 4 overs. 23 in 6 balls. Minimum 4 sixes. And this match could be of Dadus. 6 from 23. Sorry. 23 from 6. Can Gatik deliver the goods for Dadu Warriors? One of the most exciting match of this tournament so far. Chasing a target of 89 in 5 overs. And Dadu Warriors are bang on target because they have maintained the average which is required to win this match. I think they are par with the average. Can Vaibhav defend 23 runs for his team? Oh, a dot ball. A dot ball at this stage of match is sunny for Paula Icon. 23 in next 5 balls. Will the wind help or will it go against? Square cut. We'll get 4 for that. Yeah. A 4 at this stage of match. Anything which sails over the fence will be worrisome for Paula Icon. 19 from 4. 2 gone. Another 4 to come. $70 for 3. It's snicked and gone.
dominating Poly Icons all over the match now. They have got the prizes scalp of Gratic, man who had dominated the batting of Dadu Warriors. $70 for 4, and they now require 3 sixes. Any mistake from here on will lose the match for Poly Icon, but they are strongly in this match right now. $31 from 14 balls. That's what Gratik has contributed for his team. Davis is a new man. 3 sixes. Good piece of bowling. So they will not mind to single or twos. They now require 18 from 2. That's very difficult. But they had given a solid fight to Poly Icons. A match to watch. So just the formality of the match, and I think Poly Icon all over the match now. That's it, and the third match of this tournament is won by Poly Icon. I will not say it's comprehensive winning, they got solid fight back from Dadu Warriors. So the next match will be between Betul Yodha versus Bhumi Purush Palolem.